Namaste Kumar, Namaskar. I welcome you all to this fourth fourth motivational talk series, which is on Kavita Preranadai today. It will be delivered by Dr. Satya Patnaik, retired principal Panchayat College. I welcome motivational talk series and Vice Chancellor of Kalahandi University, Professor Sanjay Kumar Satya. I also welcome Sri Santanu Kumar Porida, Youth Red Cross District Coordinator and Lecturer in Education of Sarvamangala Higher Secondary School, Golamunda. And I welcome the speaker for the talk today, Dr. Satya Patnaik, and I welcome all the eminent listeners and intellectuals who have been joining this program from last uh, fourth session, and today is the fourth one. I welcome you all, and you have been joining from different parts of the state. So with this, I request Sri Santanu Kumar Parida sir to give the welcome address. Thank you, sir. କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ हाँ शांतनु ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ शांतनु ସାର୍ केवल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करो आगे ही चलो वी हैव लॉस्ट 5 minutes ସାର୍ 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 ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତୃତାମାଳା ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କବିତା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନନୀୟ କୁଳପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ସହ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସଦ୍ୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ସୁସଂଗଠକ। ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ଓ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ନୀଳ ଓମକାର, ନୀଳ ପଦ୍ମ, ଭକ୍ତ ଗୋବରୀ, ବୁଧିଆଧର, ହାଜତରେ କାଲାମ, ନୀଳଦୀପ, ନାଟକ ଆଶାର ଅରଣ୍ୟ, ଶିଉଳି ସମୁଦ୍ର, ଚୋରାବଲିର ଡାକ, ହୋ ହା, ଉତ୍ତାନ ପାଦ, ସମୟର କାବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକା ତଥା ଅନେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ମହାନଦୀ ସଂସ୍କୃତି ସେବା ସମ୍ମାନ, ଗୁରୁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ଇନ୍ଦ୍ରରତ୍ନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ସମାଜ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ, ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର ଏହି ବକ୍ତୃତା ମାଳାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ଆଜିର ବକ୍ତୃତା ମାଳାର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଧର୍ମଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ସହ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କଲମ ଚାଳନା କରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା, ସୁସଂଗଠକ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଓଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଆପଣଙ୍କ ରଚିତ ବହୁ ପାଠକ୍ୟ ଆଦୃତି ଲବ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତାଯୁକ୍ତ କବିତା ସଂକଳନ ନଦୀ ସହ ଏକା ଏକା ଗପ ଓ ସଂସ୍କାରମୁଖା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅନ୍ଧ ଋତୁର ଫୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ରଚିତ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦିତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଡୋଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଦି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷରତା ସମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିମୁଗ୍ଧ ଠିକଣା। ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଦତ୍ତ
महावीर महोत्सव सम्मान, सर्वश्री सभाख्या साहित्य संसद प्रदत्त सर्वश्री साहित्य सम्मान, कलाहांडी उत्सव घुमुरा 2020 प्रदत्त कलाहांडी बरपुत्र सम्मान, कलाहांडी लेखक कला परिषद प्रदत्त कवि जुगल किशोर जोशी स्मृति सम्मान 2021 और धर्मगढ़ साहित्य संसद सम्मान आदि अनेक सम्मान विभिन्न अनुष्ठान तरफ संबर्धित होती। कविता प्रेरणादायी आलोचना को निमंत्रित वक्ता भाव आपन को सादर। कविता मनुष्यर जावतीय जंजालमय जीवनचर्या भितर एक आश्वासन बिंदु जहाँ आमको प्रबोधना दिए, उत्फुल्लित करे, उज्जीवित करे, प्रतिकूल परिस्थिति बंचीबार स्पृहा दिए। कविता जीवन को सरस सुंदर करी गढ़ी तोलिबार एक माध्यम, जीवन को उचित मार्ग रे जीवार एक प्रकृष्ट कला। कविता प्रेरणादायी हेले ताहा मनुष्य समाज पई पालटे वरदान सदस्य। आज यही आलोचन उपस्थित थिबा समस्त सतीर्थ बंधु, शुभेच्छु, बुद्धिजीवी, साहित्यानुरागी तथा छात्र छात्री मानक सादर स्वागत करुछि। आम गहन उपस्थित थिबा विद्यालय विश्वविद्यालय विभिन्न प्राध्यापक प्राध्यापिका माने एवं विशेषकर नुपुर साहू सार, हिमांशु चरण षडंगी सार, सीमांचल मिश्र सार, पूर्णचंद्र साहू सार, मनोज कुमार मेहर सार, गोपाल मिश्र सार, गोविंद साहू, नृसिंहानंद सासमल, निर्मल नायक, सरोज पंडा, मैडम सिली राउत, सबिता बाग एवं डॉक्टर अजित नेगी तथा समस्त को कार्यक्रम को करुच्ची एवं यही कार्यक्रम को आगे नापी श्री संजीव कुमार साहू महोदय को अनुरोध करुच्ची वक्तृतामालार आवाहक तथा विश्वविद्यालय उपकुल सचिव तथा इंग्राजी विभाग मुख्य कैप्टेन जयदेव साहू सहकारी प्राध्यापक समस्त को कार्यक्रम को स्वागत करी मोर कार्यक्रम को विराम दूची। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Now, may I request Dr. Satya Patnaik to deliver his talk on Kavita Preranaday. Over to you, sir. समस्तंकु मोर नमस्कार। आज मोटिवेशनल टॉक उत्तिष्ठतर जो विषय वस्तु निर्वाचन करा जायछि सेटा होछि कविता प्रेरणादायी। यही आलोचना चक्रर आरंभ पूर्वर मु प्रथम तो कृतज्ञता ज्ञापन करने चाहूँगी जे एमिति एक बिंदु भितर सिंधुर परिकल्पना करा जाय पारुथबा गोटा विषय वस्तु को निर्वाचन करछन्ते आपण माने। आउ यही आलोचना चक्र रे जो बाग्मी माने, जो बुद्धिजीवी माने, जो सुहृद बंधु माने उपस्थित अछन्ते समस्त को पुणी स्वागत करुछि, अभिनंदन जनाऊछि। आउ आशा करुछि जे आपण मानकर बौद्धिक तृष्णा को यही समय सीमा भितर मु जेतिकी समर्थ हेबे सेतिकी आपण मानकर उनको तृष्णा मेंटाइबार चेष्टा करिवे। कारण या एमिति एक विषय वस्तु जहाकू कि निर्दिष्ट समय सीमा भितर आलोचना करबा संभवपर नुहे। प्रथम रु आपण मानकू कहिछि जे बिंदु भितर सिंधुर परिकल्पना होछि कविता। कविता प्रेरणादायी कारण आमे जो स्थूल जगत रे बसवास करूछु ता भितरे सूक्ष्म अंतर्दृष्टिर अनुशीलन कले जाई कवितार निकटवर्ती हो पारिबा, कविता निकट को आमे पहुंच पारिबा। कारण हजार हजार वर्ष धरिकरी आमे जो विश्व जगतर छाया एवं माया भितर रहिछु एवं यही विश्व रे एते उत्थान पतन, एते अभ्युदय, एते विकास र पर्व घटी जाइछि एवं घटिबा को जाउछि। सेही संधि भितरे गोटाए काव्यमय जगत र परिकल्पना करबा एवं काव्यमय जगत भितर को प्रवेश करबा मो भली गोटाए साधारण विचारवंत व्यक्ति पक्षरे दुस्साहस व्यतीत आउ किछि नहे। तथापि मु चेष्टा करिबे मनुष्यर अभ्युदय कालरू चेतन जगत रे प्रवेश करिवार समय बा सेही भितर को जाइकरी विश्व को बुझिबा बा उपलब्धि करिवार समय से एई जगत को जो भाव रे अनुभव करबा पय सिखिछि, जो भाव रे अनुभव करबा
କରିକିରି ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଅନୁଭବ ବା କାବ୍ୟିକ ଉପଲବ୍ଧି ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେ ଯେତିକି ବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରାଗଲା, ସେ ସମୟ ସେ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ତମସା ନଦୀକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏ ତମସା ନଦୀର ଜଳ କେତେ ପରିଷ୍କାର, ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷର ମାନସିକତା ଭଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର ମାନସିକତାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ନିଷାଦ ତାଙ୍କୁ ସରବିଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ କରୁଣା ସହିତ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଯେ ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ଆଗମ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଯତ୍ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦିକ ଏକମ ଅବଧି କାମ ମୋହିତ। ହେ ନିଷାଦ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁ ସେମିତି ଗୃହହୀନ ହେଇକରି ବିଚରଣ କରିବୁ, କାରଣ ଏମିତି ଏକ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉମାନେ କି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣାର ଯୋଉ କବିତାର ବା କରୁଣାର ବିଦ୍ରୋହରୁ ଯୋଉ କବିତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ସେ ହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଜଗତଟିକୁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀନ କରିଛି, ମାନବିକତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କବିତାର ପ୍ରେରଣା, ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ କବିତା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, କବିତା ବିଦ୍ରୋହ ଶିଖାଏ, କବିତା ବାକ୍ସ୍ଫୁରଣ କରାଏ ଏବଂ କବିତା ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନେ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରକ୍ଷା କରେ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ହିଁ ସେଇ ଚେତନାଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମର ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦେଇକରି ଗତି କରିଛୁ ଏବଂ ଥିଓରି ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା, କି ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନର ଯୁଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଗୁଡାଏ ସଂଘର୍ଷ ଗୁଡାଏ ଲଢେଇର ଯୁଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଣିଷରେ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତିକି ବେଳେ ଏଇ ସମୟର ଦାଢରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଇଛୁ, ଏଇ ସମୟର ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହେଇଛୁ, ଯେତିକିବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଖୋଜିବା, ଦେଖିବା, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲିବାକୁ ବସିଛୁ, ସେ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ଜୀବନ ଆଉ କରୁଣା, ଜୀବନ ଆଉ ହୃଦୟ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବା ବା ଜୀବନକୁ ନିଜର ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଇ ପରିଭାଷାଟିକୁ ବୁଝିବାର ଯୁଗ ହୁଏତ ଅପକୃତ ବା ଅପଶ୍ରୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛୁ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୋଲି, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୋଲି ଆମ ନିକଟରେ ସେ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ପୋଏଟିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲେଜର, ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇଟା ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଛାତ୍ର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ T.S. Eliot ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନଆଟେଣ୍ଡେଡ ମୋମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଜଏସ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏପିଫେନି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭରି କରିବାର ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ହରେଇ ବସିଛୁ। କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି କବିତା ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ, ଏଇଟା ଆଜିର ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଆଜି ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକାଟିକୁ ଆମେ ଏତେ ନିକଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ହରେଇ ଦେବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯୋଉ ପୀଡା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିତା ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ
एई चेतनाटी को आमे बुझिबा दरकार बा उपलब्धि करबा दरकार मते लागुछे जे आत्म आविष्कार करबार मुहूर्त कविता प्रेरणा दे पारिबो कि प्रेरणा दे हे पारिबो कि कारण आमे जते बेले कविताटी को बुझिबा पय चेष्टा करू सेति के बेले लागे जे हमर भीतर थिबा भाव आवेग चिंतन एई सब जिनसटी को जदि आमे गोटे शब्द भीतर परिप्रकाश करबा ताहले जेकर सेटा कविता हबो जेमति कि रॉबर्ट फर्स्ट कहउचंती पोएट्री इज व्हेन एन इमोशन has found its thought and thought has found words हमर इमोशन हमर भाव एवं ए दुईटा जिंस जतिके बेले शब्दटी को पाइबे शब्दटर निकटतर हेबे सेतिके बेले ही कविता हबो एवं से कवितार जो मुहूर्तटी बा गठन करिवार जो प्रक्रियाटी सेटा केवल आसीबो जतिके बेले हमें अनअटेंडेड मोमेंट बा ए मुहूर्तटी को पहुंचबा जेम्स जॉयसन द मोमेंट ऑफ एपिफेनी निकट को पहुंचबा बा डॉक्टर राधाकृष्णन आत्म आविष्कार मुहूर्त को पहुंचबा ताले जेकरी कविता प्रेरणादायी हे पारिबो एवं एरिस्टोटल कविता संपर्क रे गोटे भलो जिंस कहजंती जे पोएट्री इज मोर फिलोसॉफिकल एंड ऑफ हायर वैल्यू देन हिस्ट्री इतिहास को से मने पको नहंती मनिषर अभ्युदयर इतिहास बा मनिषर संघर्षर इतिहास मनिषर लड़ाई रो इतिहास मनिषर राजा एवं प्रजा हबार इतिहास ए सम जिनसटी को आदौ से मने पको ना से कहउचंती जे पोएट्री इज मोर फिलोसॉफिकल जेमिति कि प्रथम श्लोक रे आमे आलोचना करथलो वाल्मीकिंकर निषाद को अभिशाप रु जो तांकर प्रथम महाश्लोकटी आरंभ हला से भितर भी गोटे दर्शन थिला एवं से भितर मध्ये गोटे हायर वैल्यू थिला एवं तेनु करी कविताटी सब बेले गोटे फिलोसॉफिकल दर्शन एवं गोटे उच्चतर जोटा जोथरे कि हमर को मीनिंगफुल लाइफ रो कथा परिभाषित हुए ताकू ही हमें कविता बोली कहि थाउ एवं आउ गोटे जिंस एई आजिर प्रसंग रे मोर मने पड़े जर्मन रो गोटे ग्रेट फिलोसोफर थिले से होचंती मार्टिन हाइडगर से सब बेले जेतेबेले तांकर एसे ऑन लैंग्वेज ऊपर जो तांकर प्रबंध निबंधटी लिखिथिले से गोटे जिनसटी कोट करिथांते सब बेले जो होल्डरलिन आउ जने जर्मन रो ग्रेटेस्ट पोएट आफ्टर गेटे को परे आउ जने विख्यात कवि जर्मन रो थिले से कोट करंती दो ही हैज टू अर्न ए लिविंग मैन ड्वेल्स पोएटिकली ऑन द अर्थ से कहबा पय चाहिछंती माने 18th century बा mid of 18th century most probably more exactly मने पड़ो नाही से समय रे से कहबा पय चाहिए जे मनुष्य जदी भी बंचिबा पय रोजगार करबा बंचिबा पय विभिन्न प्रकार करिथाय बहु प्रकार व्यवसाय करथाय किबा बंचिबार बा मीन्स टू लिव पय गुडाय जिंस चिंता करथाय ठीक सेति के बेले से कहउचंती जे तथापि मनुष्य बंचे पोएटिकली ड्वेल्स पोएटिकली ऑन द अर्थ पृथ्वीटी को बुझिबा पाए पृथ्वीर प्रकृति को बुझिबा पाए नद नदी झरना को बुझिबा पाए पक्षीर काकळी को बुझिबा पाए कोइलीर कुहुतानटी को बुझिबा पाए फुलर फुटिबार दृश्यटी को अनुभव करिबा पाए बा गोलापर सुगंध को उपलब्धि करिबा पाए बा कंटारे कंटकित ये भितरे जो गोलाप फुलटी फुटे ता भितरे जो जीवन दर्शनटी को बुझिबा पाए किंबा कादुआ भितर पद्म फुलटी फुटे से दृश्यटी को उपलब्धि करिबा पाए बा अनुभव करिबा पाए बा आकाश रे जो मेघ को अतिक्रम करी करी शून्य रु महाशून्य पर्यंत जो हमर सीमा जाए से सीमा भितर छंचाण उड़ेबार दृश्यटी को देखिबा पाए ए सबु जिंसटी को उपलब्धि करिबा पाए मनुष्यटी को पोएटिक हेबा पाए बाध्य पोएटिकली बंचिबा पाए बाध्य ता नहेले से ता भितरे केवल से स्थूल जगत भितर रहि जिवो तार सूक्ष्म अंतर्दृष्टि बा आत्म अन्वेषण करिबार बा अनअटेंडेड मोमेंट बा जो आत्म आविष्कार बा सेल्फ डिस्कवरी मोमेंट आदौ ता जीवन रे आसीबो नै तेणु आमे सब बेले मनुष्य तीन प्रकार जगत रे बा जगतर परिवेश भितर बंचे गोटे होची भौतिक आ गोटे होची दैविक आ गोटे होची आध्यात्मिक हमकु चारियाडी चतुर्दिक रे घेरी बसची भौतिक जगत की एवं ए भौतिक जगत रे हानि लाभ भलो मंद स्वार्थ ईर्षा अहंकार ए सब जिनस गुडी कर चर्चा आलोचना होची एवं परस्पर रो छिद्र देखिबा ठारो आरंभ करी परस्पर को सही न करबा इंटॉलरेंस ठारो असहनशीलता ठारो आरंभ करी
अन्य को अन्यर जीवन भीतर को प्रवेश करी तार सब किछि को केनभिन करिवार जो प्रक्रिया से होछि भौतिक जगत रे संभव एवं तापर आउछि जे प्रीडेस्टाइन्ड जोटा कि आमे कहूछु जे एटा मोर भाग्य घटिबार थिला बा एटा होछि दैविकृत जे विपर्जय हे पारे बन्ना हे पारे जो जिनसटी को आमे आकलन करि परिबा नै जोटा हम पे अनप्रेडिक्टेबल जोटा को आमे भविष्य रे कोन घटिबो ता कहि परिबा नै एवं ताको दैव ऊपर छाड़ी दउछु किंतु तार परे भी जो चेतनाटी अछि बा जाउ जो स्तरटी को हमको उन्नीत हबा को पड़िबो एवं जोटा को आमे जीवन रे गुडा उत्तरण पर्व बोली करी कहूछु बा विचार करूछु सेई चेतन स्तरटी को जीवा पई हम कहूछु सेटा होछि आध्यात्मिकता स्तर एवं सेटा होछि पोलिटिकल स्टेज बट पोलिटिकल लेवल एवं सेई पोलिटिकल लेवल को पहुंचबा पई हमको एई भौतिक एवं दैविक प्रक्रियाटी ठारू आहुरी आगो को बढ़िबा पड़िबो तले एई जो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि रो बीजटी आम भितरे के अंकुरण करिबो के आमर चेतना भितरे एई सूक्ष्म अंतर्दृष्टि को उद्गम कराइबो सेटा होछि कविता एवं कविता बिना सेटा आदौ संभव पर नहीं कारण कवि होछि सेई व्यक्ति बा कविर अंतर्दृष्टि होछि सेई सत्ता जो जगह रे पहुंची पारे नाही रवि बा सूर्यर किरण से जगह रे कवि पहुंच जाई थाए एवं सेति पय संभवतः कुआ जाए पोएट्री कम्युनिकेट्स बिफोर इट इज अंडरस्टूड बुझिबा पूर्वरु कविता बुझेई देता है एवं परे आमे ताकू बुझिताउ किंतु ता पूर्व कविताटी हमकु आकर्षण करथाए जेमिति कि हमकु बेले बेले लागे जे रविन्द्रनाथ ठाकुरଙ୍କର गोटे कविता मोर एई समय रे मने पडुछि जे आमे भगवान को सब बेले व्याकुल हेकरी डाकी थाउ एवं न पाइबार जो वेदना आम भितरे थाए एवं आमे भाबु जे कोन प्रकृति रे एई जो महामारी समय रे सब बेले समस्त को लागुछि जे प्रकृति रे ईश्वर कोन तांकर खेल रचना करछन्ती ईश्वर कोन एतिकी टिके संवेदना तांको भितरे नाही समग्र विश्व जगत को एई महामारी रे कबळ रे कबळित करछन्ती किंतु सेतिके बेले कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुरଙ୍କର जो कविताटी गीतांजलि रे से प्रसंगत लिखिछन्ती जे प्रभु तम लागे आखि जागे देखा नाई पाए व्यथा पाए सेओ मने भालो लागे हे प्रभु तम पय मोर आखि सर्वदा जागृत सब बेले खोला अछि किंतु मु तुमको देखि पारे नाही मोर ए चर्म दृष्टि मु प्रत्यक्ष करि पारे नाही किंतु सेओ मने भालो लागे से मते भालो लागे चारि दिके दुख भरा व्याकुल श्यामल धरा कांदा ए जे अनुरागे देखा नाई पाए सेओ मने भालो लागे अनुराग रे मो कांदे मोर चतुर्थ करे दुख रहिछि किंतु मते अनुराग रे कांदिबा को भलो लागे व्याकुल श्यामल धरा समग्र सबुज बनानी प्रकृति सब व्याकुल तथापि सेओ मने भलो लागे ए जो मिस्टिसिज्म ए जो रहस्य एई भितर ही हमको कविता प्रेरणा दिए कविता आगो को बढ़ेबा को दिए कविता सिखाए जे जीवन रे दुख आसु जीवन रे कष्ट आसु किंतु हमको लढिबा को हबो कारण जदि आमे चिंता करबा जे गौतम बुद्धंक ठारू आरंभ करी गांधी को पर्यंत एवं रविन्द्रनाथ ठाकुर ठारू आरंभ करी तेंदुलकर पर्यंत आइंस्टाइन को ठारू आरंभ करी शेक्सपियर ठारू स्टीव जॉब एवं बिल गेट्स को पर्यंत जो महामनुष्य माने आज समग्र विश्व रे तांकर निजर आत्मविश्वास बल रे समग्र विश्व रे निजर पतियारा जाहिर करिसंती निजको समान एस्टाब्लिश करिसंती समान केबे ना केबे निज जीवन रे निराशा भाव आछि पराजय अनुभव करिसंती वा पराजित हेछंती उदासीनता तांको मन को आक्रमण करिछि एवं समान सेतिरु एई जो नकारात्मक चिंताधारा से केबे भी वंचित नुहंती सब बेले समान को आक्रांत करिछि किंतु एई स्तर रे गति करी केबे ना केबे को ना को जगारो से माने प्रेरणा टिकक संग्रह कर नैछंती एवं जोथि पाए से माने गोटे संघर्षमय जीवन रे गोटाए नवश्चंबी व्यक्तित्वर से जो स्वर्णिम जो सूर्योदय सकाळ को प्राप्त करिसंती एवं सेतिर से माने जाई करी पहुंची जाइसंती एमान को भितर केबे ना केबे किछि ना किछि जो अद्भुत भाव रे ए जो कविता तांको प्रेरणा जोगाइ छै सेति लागि श्री अरविंद गोटे जगह रे कहउछंती जे रिवील योरसेल्फ टू द प्रेजेंट निजको वर्तमान रे तुमको प्रकाश कर दियो इट पेन्स नो मोर टू यू आदो तुमको आ कष्ट देबो नाही स्माइल एट योर सरो दुख रे तमे केवल टिके हसी दियो इट हर्ट्स नो मोर टू यू या ठारो आउ कोन माने अधिक प्रेरणादायक शब्द हे पारे एवं श्री अरविंदଙ୍କର जो
आध्यात्मिक एवं रहस्य ए दुईटीर समन्वय जो कवितार धारा जो दार्शनिक अनुचिंतार जो कवितार पंक्ति गुड़िक से लिखिं से निश्चित भाव में प्रेरणादायी तेणुक कहुए से आगु आपण कोट करते संभवतः ग्रेट पोएट्री कम्युनिकेट्स बिफोर इट इज अंडरस्टूड बुझा आगु से आमको कम्युनिकेट करदे कवितार रचना शैली रे सबुठारु बड़ जिनसटी है तार प्राण शक्ति थिबा दरकार एवं तार सबुठारु बड़ विचक्षण बड़ लक्षण टी होची कविता जो प्रेरणादायी कवितार लक्षण टी होची तार आवेदन गभीरता थिबा दरकार जो डेप्थ ऑफ ए पोएट्री कविता को बेसी माने प्रेरणा बा मु एठी दुईटी जिंस मु मोर निजर मत होची जे गोटे मोटिवेशन आ गोटे इंस्पिरेशन एठी हमको बुझिबा को हेबो जे वेदर पोएट्री मोटिवेट्स अस और इट इंस्पायर्स अस जे मु कहूची पोएट्री इंस्पायर्स अस मोटिवेशन होची गोटे टेम्पोरारी जिंस इंस्पिरेशन होची जे लॉन्ग लास्टिंग जिंस सो पोएट्री मोटिवेट्स बट इट इंस्पायर्स जदि ते कवितार आवेदन थिबो जदि तार डेप्थ थिबो एणु कहा जाए कविता लिखिबार व्यापारटी होची नांदनिक अनुभूतिर व्यापार बा एई सृजन अनुभूतिटा होची अव्यक्त एइटा केबे भी परिप्रकाश करि हेबो नै एवं सेति पई आज पर्यंत समग्र विश्व जगत रे जो बड़ बड़ कवि से बायरन हे पारंती सेली हे पारंती किड्स हे पारंती शेक्सपियर हे पारंती कालिदास हे पारंती एवं रविंद्रनाथ ठाकुर हे पारंती जो माने अंतर्जातिक स्तर रे प्रतिष्ठा अर्जन करिसंती जर्मन कवि गेटे एवं होल्डरलिन पटर आरंभ करी पर्शियन कवि खलील जिब्रान एवं सूफी कवि रूमी को पर्यंत जो मानकर जीवन दर्शन जेते की आवेदन पुष्ट जो मानकर जीवन दर्शन जेते की हृदय रु हेछि जोटा की अभिव्यक्ति हृदय रु घटी सेटा आज पर्यंत कालजयी कृति भाव एवं आम मान को 21तम शताब्दी मनुष्य को भी तार निराशा बेले तार उदासीनता बेले तार भांगी जाउथबा बेले से प्रेरणा जोगई जो कह जाए जे कविता सबु काले काले सबु मनुष्य को समान भाव में प्रभावित करिछि एवं आपण गोटे केवल सही कविताटी को मने पकांतु हमर कवि विभु भयंकर प्राणीर आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सौ मो जीवन पछे नट्य पड़िता जगत उद्धार हो ये जो कविताटी भितर जो मर्म मानी झंकृत होछि जोटा प्रतिध्वनित ता भितर जो प्रतिध्वनिटी शुभुछि से प्रतिध्वनि आवेदन आज 21तम शताब्दीर मनुष्यर मानसिकता भितर कौन आलोड़न सृष्टि करि परिबो नै सृष्टि करिबो निश्चित भाव कारण तार आवेदन से शक्तिशाली एवं कविता को केबे भी कहा जाए नहीं जे निर्देश दिया जाय परिबो नहीं पोएट्री कमांड्स रो सीमा भितर आबद्ध नहीं आमे फूल को कहि परिबो नहीं फुट बोली करी आमे कोइल को कहि परिबो नहीं गीत गा बोली करी आमे ताको निर्देश दे परिबो नहीं तेणु सभी कविताटी को मध्य आदौ निर्देश दिया जाय पारे नहीं तो कविटी को कहा जाए नहीं जे कवि तू कविता लेख एई प्रकार भाव रे कविता लेख बरादिया कविता लिखुथिबा कवि आदौ कवि नुहे हृदय रु आवेदन जोटा की भीतर बाहर जोथि पई कहा जाए पोएट्री ऑलवेज इट इज स्पॉन्टेनियस एवं इट इज लोडेड विथ सोल्स आत्मार जो स्पर्श ता भीतर थाए कवितार रीति रस ध्वनिर कथा थिले मध्य सबुठारु बड़ वैशिष्ट्य होची कविताटर औचित्य बोध ता भीतर जदि वैल्यू नाही औचित्य बोध नाही तार डेप्थ नाही तार जो ट्यून बा जो स्वर अछि से जदि हमको स्पर्श करि पार नाही अरविंद तांकर जो कविता प्रसंग आलोचना कला बेले विभिन्न कैटेगरी करछन्ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिसनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिसनर क्रिटिक्स विभिन्न प्रकार तार कैटेगराइजेशन करछन्ते तेणु कवितार रीति रस ध्वनि कथा थिले मध्य तार औचित्य बोध रहिबा दरकार ता ना हेले प्रेरणा सृष्टि करि परिबो नै आमे माने समस्त सुनि जानिछु भारत वर्षर प्रसिद्ध संस्कृत समालोचक एवं टीकाकार मल्लीनाथ कालिदासंकर कवितार चर्चा तर्जमा करथिले एवं तार कवितार तर्जमा आलोचना करबा पई जाय करी से कालिदासंकर गोटे कथा लिखिचंती जे महाभाग आपण बाक एवं अर्थ को
ବାକ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ବାଗାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗାର୍ଥମ ପ୍ରତିପତ୍ତେ ଜଗତ ପିତରୁ ବନ୍ଦୀ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମଲ୍ଲିନାଥଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କ କବିତା ଉପରେ ଯେ ଯେଉଁ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଆପଣ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତୃ ପ୍ରତିମ ଶିବ ଆଉ ମାତୃ ପ୍ରତିମ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବାକ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ ବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏଇଠି ହଉଛି କବିତାର ଔଚିତ୍ୟବୋଧ। ଏଇ ଔଚିତ୍ୟବୋଧ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବତଃ କାଳିଦାସଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ମଲ୍ଲିନାଥ। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସ ମହାକବି ଏବଂ ସେ କୋଉ ବିଚାରଧାରାରେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କବିତାର ଯେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କବିତାର ପଂକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେବଳ କବିତା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କବିତାର ଡେଫିନିସନ କଣ ବା କବିତା କଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜାଇକ ଡିସ୍କସନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନ ହେଇପାରେ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେମିତିକିରି ଈଶୋପନିଷଦରେ କବିକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ହଉଛି କବି ମନୀଷୀ ପରିଭୁ ସ୍ୱୟଂଭୁ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦିଓ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାରଣ କବି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ଏଇ ଲୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଚେତନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁ। ତାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି। ଆଜିର କାଳରେ ଯେମିତିକି କଥା ହଉଛି କାହିଁକି ଆମେ କବିତା ପ୍ରତି ଏତେ ଉନ୍ମୁଖ ହେବା ଆଜିର 21ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରୀକ ର ଲୋକ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗ୍ରୀକ ର ଲୋକ କଥାରେ ସେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡୋରା ବକ୍ସ ନେଇକି ଯୋଉ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ବିବାହ କଲା ଏବଂ ଯୌତୁକରେ ପେଣ୍ଡୋରା ବକ୍ସ ଦେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୋରା ବକ୍ସକୁ ଖୋଲାଗଲା ସେଥିରେ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବାହାରିଲା ଆଶା ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ହିଁ ହଉଛି ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ନିଶା। ଏବଂ ସେ ଆଶା ଟିକକ ନଥିଲେ ଯଦି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜଗତଟି କବଳିତ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ହୁଏତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେ ଆମେ ମରିତେ ଚାଇନା ମାଚିତେ ଚାଏ ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଅମର ପଂକ୍ତିଟି ଲେଖିନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟିର ସର୍ଜନାର ମୂଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଆଶା ଏବଂ ଏଇ ଆଶା ମଣିଷର ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପଡୋଶୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶା ଏବଂ ଏ ଆଶା କବିତା ଭିତରୁ ହିଁ ସୃଜିତ ହେଇଥାଏ ବା କବିତାର ପୋଏଟିକ ଲାଇନ୍ସ ଯେତିକି ବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ହଉ ସେ ମହାଭାରତ ହଉ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ହଉ ମହାଭାରତ ଲଢେଇ ହେଇଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ରାନ୍ତ ଭୂମି ଉପରେ ଚାରିଆଡେ ଶବ ପଡିଛି, ସବୁଆଡେ ରକ୍ତର ନଦୀ ଛୁଟୁଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ରଥ ଉପରେ ବସିକରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ପରମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ପରମ ବିରୋଧାଭାସ କଣ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାଟିକୁ ଏଇ ଚେତନାଟି ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ଜିନିଷଟିକୁ ଉଖାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା। ବା ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ କର୍ମ କରିବା ବା ସେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ମାନେ ଗୀତା ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଟା କଣ କମ ପୋଏଟିକ ନୁହେଁ, ସେଟା କଣ କମ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ମଣିଷର ଯୋଉ ଉଦାସୀନତା ଆସିଛି, ପରାନ୍ମୁଖ ହେଇଯାଇଛି ମଣିଷ, ପରସ୍ପରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଡିଏଚ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତାର ପଂକ୍ତିଟି ମୋର ମନେ ପଡେ ଆଉ ମୁଁ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ।
तुम्हें और मोर संपर्क कौन हो पारे केमिति हो पारे यू एंड मी हाउ द रिलेशनशिप बी इन बिटवीन ए प्रसंग एरा उत्तर से गोटे छोटिया कविताटी प्रसंग उल्लेख कर यू आर द कॉल तुम्हें हो मोर आह्वान आई एम आंसर मु हो तोर उत्तर यू आर द कॉल मु हो आंसर आई एम द आंसर यू आर द विश तुम्हें हो मोर इच्छा आई एम द फुलफिलमेंट मु हो फुलफिलमेंट पूर्णता तुम्हें इच्छा कल मु पूर्णता पहुंची जाइए तुम्हें डाकिल मु उत्तर है पहुंची जाइए स्ट्रेंज अद्भुत तथापि हाउ वी सफर इन स्पाइट ऑफ दिस ता सत्य भी आमे कहीं जंत्रणा पड़ुछ आमे कहीं जंत्रणाक्त होउछि आमे कहीं चिंता करि पारुना हो हमर जीवन रो सकल पूर्णता हमर भीतर ही तार उत्तर टी अछि तेणु कविताटी को बुझिबा पाए बा कविताटी को उपलब्ध करबा पाए जो विशेष भाव में जो प्रस्तुति दरकार मानसिक स्तर जो प्रस्तुति दरकार से प्रस्तुति आम भितर सृष्टि हो पार ना कि बेले बेले मोर मो मन रे अनेक प्रश्न आसे जे आज शिक्षा व्यवस्था बहु भाव में परीक्षा निरीक्षा देकर गति करुछि ताले आमर संस्कृति आमर परंपरा आमर गीतिधारा आमर पोएटिक कल्चर आमर लिटरेचर ये सब जिनस धीरे धीरे घुंची जाइकरी केमिति कमर्शियलाइजेशन हो जाउछि व्यवसायीकरण काहे के जाउछि आमे कोन गोटाए उपभोक्तावाद रो शिकार बा उपभोक्तावाद रो संक्रमण रो शिकार हो जाइछु हमर चेतना कोन ता निकट रे अर्पित हो जाइछि आमे कोन निजे को उपलब्धि करबा पय बा बुझिबा पय आम भीतर जो अनुशीलनात्मक दृष्टिभंगी दरकार बा उपलब्धि जो दरकार से उपलब्धि कोन आमे हरे बसछु कि एटा एई समय रो संकेत बा हमको कोन एई समय गोटे संधि क्षण रे पहुंचे देछि जोथि पय विद्रोही कवि दुष्यंत कुमार हिंदी रो प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जार के प्रत्येक क्रांति जो समय रे भी गोटे आंदोलन हेछि जो समय रे भी गोटे क्रांति हेछि से ताको तांकर पंक्ति को आवृत्ति करिबारे ताको आवृत्ति करी आंदोलन रे उन्माद हेबारे बा गोटाए जो फोबिया सॉरी गोटाए जो चेतनार जो उद्गम से से माने प्रवेश करबा पाए से सब बेले से पंक्ति को आवृत्ति करती ये गोटाए जितके बेले गरीबी हटाओ आंदोलन चलता बा लोक माने भोग क्षुधा एवं तृष्णा रे मृत्युवरण करुले से समय कवि दुष्यंत कुमार एक कविताटी बेस प्रासंगिक होता से समय भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ आजकल दिल्ली में है जरे बेहस बहस ये मुद्दा भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ गिड़गिड़ाने के यहाँ कोई असर होता नहीं गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं पेट भरकर गालियां दो आह भरकर बद्दुआ ये जो जंत्रणाक्त जंत्रणा एवं पीड़ारे सड़ुवा मनीष मान को जो द मोमेंट ऑफ एवेकनिंग जोटा को कहा जाए जागृत परिवार जो मुहूर्त से जागृत परिवार मुहूर्त ये कवि ये जो पंक्ति ये कौन कम प्रेरणादायी नुहे कौन प्रेरणा दिए नहीं एवं जो आज भी समस्ते दुष्यंत कुमार को मने पकाउछंती जे जेतिके बेले भी मनुष्यर भितर दुख आसे पहाड़ भली से ठिया हो जाए तार सामना रे सेतिके बेले पुणी से दुष्यंत कुमार कवितार पंक्ति समस्त मन भितर झंकृत हुए गोटे निया तांकर भितर सृष्टि करे निया जो क्रांतिर अग्नि तांको भितर स्फुरण हुए एवं तेणुकर से बेस समस्त द्वारा आदृत होता से कविताटी आपण मान भी हुए तो मने थाई पारे हो गई है पीर पर्वत सी हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए
दीवारे तार ओडिया अर्थ होची कांथ गुड़ेक पर्दा भली हो गलानी एवं बुनियाद हिलना चाहिए, बुनियाद हलिबा उचित एवं गांव बस्ती शहर चारिआडे हाथ हलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। प्रत्येक जो माने जो मनीष समस्त अलक्ष्य चलुची से गोटे प्राणहीन शव पलटि जाइए भितर गोटाए जागरण सृष्टि होगा दरकार। कवि गणनायक कवि कविता हो, कवि रवि सिंह कविता हो, ओडिया साहित्य एमती अनेक गोपबंधु ठार आरंभ कर मधुसूदन दास उत्कल सम्मिलनी आवाहन काल जो कवितार पंक्ति गुड़िक से समस्त मेनरे मनरे गोटे चेतना गोटे अग्नि स्फुलिंग सृष्टि करथिला। से कविता गुड़िक कौन कौन प्रेरणादायी? प्रकृति ठार आरंभ करी, प्रेम ठार आरंभ करी, जीवन जिज्ञासा ठार आरंभ करी, बंचिबार संज्ञा ठू आरंभ करी, लड़ई एवं संघर्षर कहानी ठार आरंभ करी, मनीष इतिहास मनीष सृजन इतिहास संभावना ठू आरंभ करी विश्वर विपर्जय पर्यंत सबु काल रे जदि कहीं प्रेरणा एवं शक्तिर उत्स भाव ठिया है बा ए समग्र सृष्टि को से जदि चैलेंज करके सामना करके ठिया है से कवि व्यतिरक आउ किए न पारे। जमती विलियम ब्लैक आपनकर इंग्रजी साहित्य छात्र माने आपण माने जानिथिबे विलियम ब्लैक से जो प्रसिद्ध कविता जो एग्यूरियस ऑफ इनोसेंस जो कविता अच्छी टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड धूली कणा रे मु समग्र विश्व को देखा चाहे एंड हेवन इन ए वाइल्ड फ्लावर वन्य फूल रे स्वर्ग को होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड निजर हाथ पापुली रे समग्र विश्वर असीमता को धारण कर इटर्निटी इन भावा एवं ये जो शाश्वत मुहूर्त को गोटाए घंटा भितर गोटाए मुहूर्त भितर धारण कर कौन कम प्रेरणादायी। एवं मेरी विलियम्स आउ गोटे कविता अच्छी से कवितार माने कविता को कौ भाव से कवि माने निजर जीवन बा निजर शिरा प्रशिरा ग्रहण करछंती एवं सेही ठू से माने केमिति प्रेरणा पाइछंती ए विश्वटी को देखिबा पाए प्रत्यक्ष करबा पाए एवं विश्वर जो तीनोटी स्तर कथा आपन को कहले भौतिक दैविक एवं आध्यात्मिक स्तर को जीवा पाए आध्यात्मिक जगत रे से अरविंद तो कहउचंती मेटा कॉन्शियसनेस रो बा ट्रांसकेंडेंटल मेडिटेशन रो कथा बा आ गोटे सुपर ह्यूमन रो कथा कहउचंती से तीनोटी मनुष्य कथा कहउचंती अरविंदंकर दर्शन रे गोटे होची मैन एनिमल मैन मैन आ होची गोटे मैन सुपरमैन। तले आमे आज को स्तर रे आमे पहुंचीछु मैन एनिमल रो स्तर तो पड़ी जाइछि मनुष्य पशुर अवस्था रो आमे मुक्ति पाई जाइछु एवं मनुष्य मनुष्यर अवस्था को आस्थलु किंतु मनुष्यर सुपरमैन स्तर को जीवा पाए आमे मनुष्य मनुष्यर अवस्था रे अछु कि मनुष्यर पशु स्तर को जाउछु। 21तम शताब्दी बा 21तम शताब्दी ए जो पृथ्वी ए जो वाणिज्यिक विश्व उपभोक्तावाद रो विश्व बा व्यवसायीकरण रो विश्व हमको कौ स्तर रे पहुंचैछि एटा को अनुभव करबा बा एटा को विश्लेषण करबा हमर सबुठारु आवश्यकता रहछि। तेणु जो कविता कहउतली मेरी विलियम्स केमिति कविता रे जी छंती से कहउचंती जे इफ आई कैन राइट बिफोर आई डाई मो मरिबा पूर्व जदि किछि लेखि पारे वन लाइन ऑफ प्योर पोएट्री वन लाइन ऑफ प्योरेस्ट पोएट्री सबुठारु पवित्रतम कविता जदि मु लेखि पारे और क्रिस्टलाइज फॉर ऑल टू शेयर समस्त को पाई मु शेयर करबा पाई ए थॉट यूनिक ए मोमेंट रेयर within one sentence clear and plain a thought unique and moments rare within one sentence clear and plain that I shall not have lived in vain मो जीवन वृथा हला नहीं मो वृथा बंचिछि बोली मो भाबी भी नहीं जदि एति कि मो कविता लिखि पार एटा कम प्रेरणादायी नुहे कि। तेणु एमिति अनेक कवितार धाड़ी अछि बा जोटा कि हमर जीवन काल रे समस्त को प्रेरणा देछि एवं सबु समय रे किछि ना किछि मनीष हरिवंश राय सिंगर गोटे कविता आज प्रसंग रे निहाती प्रासंगिक हबो। समय अभाव दृष्टि मु गुड़ाए जिनस एठी आपन को सामने रे उपस्थापन करि पारु नाही कारण कवितार कथा जेतेबेले आलोचना हुए
जे मनीष निजे कविता पलटि जाए एवं तार निजर भीतर निजर नियंत्रण रहे ना संभवतः सेमिति मुहूर्त आपण मान क्षेत्र में भी सब आसुथिबो हरिवंश राय वचन को जिते कौन मनीष उदास हो जाऊँगी कि हरइबार कथा तार मन भर आसूसी एवं ताकू लगुच मु सबकि जिन हर हारी जाइए से हरिवंश राय से कविता कम इंस्पिरेशनल नुहे से कहते जो बीत गई सो बात गई जो बीत गई सो बात गई जीवन में एक सितारा था माना कि वह बहुत प्यारा था जीवन में एक सितारा था माना कि वो बहुत प्यारा था डूब गया तो डूब गया अंबर की आंगन को देखो अंबर के आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे कितने इसके प्यारे छूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है तो बीत गई सो बात गई यार आउरी दु तीनोटी पंक्ति अच्छी जोटा कि मनीष को सब मुहूर्त प्रेरणा दे थाए एवं से प्रेरणार शक्ति भितर मनीष जीवार जो सत्ताटी को संधान करे एवं संभवतः आज भी बचे मोर मन पड़ुछि गोटे आपणकर वर्तमान फिल्म संगीत लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर से जो MS धोनी ऊपर जो चलचित्र तैयारी करथिले से गोटे साक्षात्कार कथा प्रसंग रे कहउथिले जे सुशांत सिंह राजपूत जे कि कला जगत गोटे प्रतिभावान युव अभिनेता जे समस्त को आमको छाड़ी गोटे आकस्मिक भाव गोटे पंथा निज भितर कल्पना करमको छाड़ी चली गले से कहते गोटे जिनस MS धोनी चलचित्र से जो संगीत गुड़िक देती जदि ठीक से मुहूर्त जो मुहूर्त से आत्महत्या करने को जाऊँ जो शुणी था संभवतः से कलाकार आज बंची जाता ही हूँ माने कवितार जो शक्ति जो मनुष्यर मन भितर जो प्रेरणाटी सृष्टि करे एवं से प्रेरणाटी जदि मनुष्य भितर आज सृष्टि हो न था आज हुए तो ताकू आमे जदि आमर जो माने बयस बढ़िया सहित लोक कहते गीता पढ़ा उचित वेद वेदांत पढ़ा उचित उपनिषद पढ़ा उचित किंतु मोर युक्ति है जदि छोट बेलू छोट बयस पिला मानकू ए गीता वेद वेदांत उपनिषद दर्शन गुड़िक भितर पढ़ा जाता बुझा दि जाता हुए तो से माने कार्टून नेटवर्क किंबा ए जो पबजी भली जो नकारात्मक बा आहु आहु जो जिनस गुड़िक डिजिटल प्लेटफॉर्म रे घटुची जो जो जिनस मनुष्यर जो मानविक मनुष्यर जो बहुमूल्य चेतन चेतन चेतना चेतन स्थित जो संपत्ति को क्रमशः नष्ट करुची जो क्षयशील हो जाऊँगी संभवतः से गुड़िक बंची जाता आज हुए तो समस्ते आम अपेक्षा करुचु केते ध्रुवटी जन्म ग्रहण कर कि केते नचिकेता जन्म ग्रहण कर अभिमन्युटी जन्म ग्रहण कर हुए तो विज्ञान जगत रे सेमिति विस्मय बालक मान आविर्भाव घटुची किंतु काव्यिक चिंतन मानसिकता थिबा बा जीवन को गोटाए दर्शन को जीवन दर्शन को नहीं जो कालजयी विचारधारा सहित जो संतानटी जन्म होबार आवश्यकता अच्छी से संतानटी को आम आज भी अपेक्षा करुचु किंतु से आम सृष्टि रे आविर्भूत हो पारुना कारण आज भी आम से रामायण जुगर चेतनाटी आज भी आमको प्रभावित करुची महाभारत जुगर चेतनाटी आज भी आमको प्रभावित करुची किंतु से प्रभाव रे जो मानसिक शांति बा मानसिक तृप्ति हमको सृष्टि होबार कथा से मानसिक तृप्ति सृष्टि हो पारना तेणु आज तो समय हो आसला सब बेले कह जाए जे कविता जे फिलोसॉफिकल जिनस तार डेप्थ थिबा दरकार तार वैल्यू थिबा दरकार तेणु सब बेले गेटिंग एग्जांपल दिया जाए जर्मन रो प्रसिद्ध कवि से पोएट्री प्रसंग रे कहउचंती जे फिलोसॉफी मैरिड टू पोएट्री सब बेले कविता एवं दर्शन रो गोटे स्वामी स्त्री संपर्क थाए जो फिलोसॉफी एवं पोएट्री गो टुगेदर एवं शेष केवल गोटे कहानी आपण मानकू कहिबे एवं मोर वक्तव्य शेष करी आपण माने समस्ते चीन राज्य रे जो थ्री लाफिंग मंक्स जोटा को आपण लाफिंग बुद्ध बोलिक आज प्राय समस्ते घरे गोटे
गोटे प्रतिमूर्ति रखुଛନ୍ତି से लाफिंग मंक्स कहानी कहीकि मोर आज प्रेरणादायी कविता प्रेरणादायी जो कथा को ये शेष करी कहानी हूँ जे तीन जन बुद्धिस्ट मंक थिले से दिने निष्पत्ति नेले जे आमे किछि करिबा नहीं ना प्रवचन देवा जे लोक को ज्ञान चर्चा करैबा ना बुद्धि बांटिबा एगुड़ी सबू सजे जमती पारंपरिक भाव में शुष्क हो गलानी आज भी जमती आमे हजार हजार वर्ष धरिक आमे प्रवचन शुणुचु किंतु आम भीतर कौन परिवर्तन हो पारना थ्री मंक्स तीन बुद्ध से कहले आमे केवल हसिबा हसिबा छड़ा आउ किछि करबा नाही से माने आज गोटे सहर रे तीन जन एकाठी हेले हसिबा आरंभ कले एवं जोटा को हृदय खोला हसा बोल कह जाए सेमिति दे लाफ्ड फ्रॉम देयर हार्ट माने निजर ओपनिंग द हार्ट दे स्टार्टेड लाफिंग आरंभ कले हसिबा एवं धीरे धीरे लोक क्रमागत भाव जमा हेले लोक प्रथम भाविले ये तीनोटी पागल होसुचंती तापरे एमान सहित सेमाने भी धीरे धीरे हसिबा आरंभ कले एवं आज गोटे सहरर किछि जंत्रणा सड़ुवा लोक हताशा निराशा भितर बंचुवा लोक से आसी किछि मुहूर्त जो हसिले जीवन जो से मुहूर्त टी भाविले यहाँ सब आम मूल्यवान मुहूर्त कारण आम जीवन में आम हसिबा भूली जाइलु जहाँ हुए तीनोटी महात्मा आमको हसिबा शिखाइले एमती गोटे सहर दुईटी सहर तीनोटी सहर समग्र चाइनार समग्र सहर रे से प्रख्यात हो गले लाफिंग मंक्स भाव में थ्री लाफिंग मंक्स एवं जतिक बेले गोटे बुद्धिस्ट मंकर मृत्यु समय आसला सेतिक बेले चाइना रे जो परंपराटी अच्छी मरी जाइथिबा लोकटी को नूतन पोशाक पिंधेकरी ताकू अग्नि रे झास दिया जाए अग्नि संयोग करा जाए शुद्ध पुत भाव में स्नान करा जाए नुआ पोशाक पिंधा जाए तापरे तार दाह संस्कार करा जाए किंतु से तार दुई बंधु को कहला जे मु मरिबा परे मते तमे आदौ धोई स्नान करेबो नाही कि नूतन पोशाक पिंधेबो नाही कारण मोर आत्मा हसी हसी एते शुद्ध हो जाइछि जे मोर आ शारीरिक शुद्धतार आवश्यकता नाही एवं जेतेबेले से मृत्युवरण करिछि सेतिके बेले ए दुई जन बंधु जो मंक थिले एमाने खूब जोर रे हसछंती एवं सारा चाइनार लोक समागम से पहुंचला एवं सेठी समस्त उपस्थित हेले एवं कहले जे एमिति गोटे मुहूर्त रे आपण माने हसुचंती पागलंग भଳି केमिति एक मृत्युर मुहूर्त से माने कहले आमे एथि पय हसुछु जे ए लोकटे जीति गला आमे दुई जन हारि गलु एवं हारिबार दुख नै हमकु कारण आनंद एथि पय जे हमर बंधुटी जीति जाइछि मृत्यु को जय करके से पळै जाइछि एवं ताकू नै करी तार से जो पुराना पोशाक रे ताकू नै करी सोइकरी जतबेले दाह संस्कार करबा पय जाउछंती से जो आपणकर दीपावली जमती विस्फोरण हुए से प्रकार विभिन्न रंग बरंग विस्फोरण हला तार शरीर अर्थात से जो तार जीर्ण पोशाक लाफिंग मंक धारण करथिले से भितरे अनेक रंगीन फोटोका गुड़े कथा बॉडी भीतर रखिथिले एवं से यही संवाद देबा पय चाहुथिले जे मु मरी जाइछि सत किंतु मो भितरु अमृत मुहूर्त सरी नाही मु आज भी तुमको विमल अमृत आनंद बांटी देकि छिबी एवं से कहीं होछि थ्री मंक्स रो हसिबार कहानी बा सूत्र तेणु जीवनर से जो शेष मुहूर्त रे मनीष जो दुख रे मृत्यु को भय करे से माने से संवाद देकी जाइछंती जे मृत्यु को आदौ भय करबा उचित नहे एवं मृत्यु को भी आमे अमृतमय करि परिबा जो दिन आमे हृदय रो हसिबा हृदय रो गीत गाइबा हृदय रो प्रकृति को अनुभव करबा एवं प्रकृति को बड़ जिंस होछि जोटा कि विशाल सीयर्स बोली कि जने लेखक अछंती से लिखिथिले एल्जेब्रा ऑफ लिटरेचर से गोटे जिंस कहिथिले जे वेस्टर्न थॉट्स बा वेस्टर्न विचारधारा 21तम शताब्दी ताको से कमेंट्स करछंती एवं से कहिसंती जे सेमाने प्रकृति को जय करबा पय चाहुचंती जे दे स्टूप टू नेचर टू कॉन्कर हार such attitude will take away poetry from life ए जो प्रकृति भीतर को आमे जाउछु जय करबा पय आज जो महामारी रो विपर्जय आसेछि आज जो बात्या होछि आज जो क्लाइमेट चेंज होछि जो उताप बढ़ी जाउछि तार कारण के होछि जे मनुष्य प्रकृति को जय करबा पय चाहे विज्ञान आज आम मान भीतर यही चेतना भरी देछि जे जेते दिन जेउ दिन आमे प्रकृति को जय करबा से दिन ही आमे परम विजय हेबा आदो नुहे जो दिन आमे प्रकृति सहित पार्टनरशिप करबा प्रकृति सहित संवेदनशील हवा प्रकृति को आम जीवन रे
ग्रहण करवा हृदय सहित आम ग्रहण करवा हार्मोनी विथ नेचर we will when we will have the harmony with nature we will listen the beautiful music of the nature से जो beautiful music आज आम मान भितर नाही तेणु करी पोएट्री आम मान ठारू दूरे जाइछि गेटेंकर प्रसिद्ध जो कवितार शब्द सहित मु आज मोर आलोचना शेष करबा पई चाहूछि से कहउचंती over the loveliness gone over the beauty slain build it again great child of art build it again with a finer word with a finer word सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमस्कार धन्यवाद नमस्कार Thank you, sir, for such an enlightening and illuminating talk on poetry, Preranadai, Kavita Preranadai. You have very beautifully presented how poetry has been an integral part of life in expressing our thoughts, ideas, and emotions. Poetry has been the medium of revolution and struggle, and how it provides an opportunity for self discovery and self consciousness. You quoted all the great poets and philosophers of the world. You quoted Bhima Bhoi, Robert Frost, James Joyce, T.S. Eliot, Aristotle, Martin Heidegger, Goethe, R.N. Tagore to support your ideas and thought. Khalil Gibran, Rumi, and many more. In your talk, you told how poetry has been a powerful art in understanding and reflecting the world around us. Poetry has given us the power to face all the ups and downs of life. Truly, sir, in your talk, you also told great poetry communicates before it is understood. And poetry serves the dual purpose of motivation and inspiration. That is what you told in your talk. And truly, you made us listen today the echoes of the great voices of the world that have been written in the form of poetry down the ages. Poetry is always spontaneous. As Keats says, let poetry come to me as leaves come to the tree. To support your ideas, you read out and quote many poems that you have collected and that will inspire the students and the listeners in this motivational talk series. Really, it is, as you told, it is difficult to cover all aspects of poetry in 1 hour or in one talk, but you have definitely covered many aspects of poetry. Thank you very much, sir. And Kalahandi University will remain indebted to you for this wonderful talk. With this, thank you I request the audience if they have any questions for sir to ask. Bankim Moon sir had already asked a question, and this question is very interesting. I would like to read out. Should poetry be purposefully mystical or spiritual, or the same is inherent? uh, may I answer Yes, sir. कविता पर्पसफुली मिस्टिकल एवं स्पिरिचुअल हेई पारे नहीं कारण प्रथम रो आलोचना प्रसंग रे when I was talking about mm, the very in regards to the poet जे ताकू कौन से निर्देश दिया जाय पारे नहीं कविता स्पॉन्टेनियस आसे एवं मिस्टिसिज्म एवं स्पिरिचुअलिज्म it comes with age with maturity आमे जदि श्री अरविंद को देखिबा शेक्सपियर को देखिबा कि टीएस इलियट को कवितार प्रसंग आलोचना करबा भीम भोई को आलोचना करबा किंबा श्रीकृष्णकर गीतार प्रसंग आलोचना करबा ये समस्त जिनस विपुल अभिज्ञता संग्रह नकला पर्यंत विपुल घात संघात भीतर देखिरी जीवन अतिबाहित नकला पर्यंत एवं चेतनार गोटाए महत्तर स्तर को न पहुंचला पर्यंत ये रहस्यावृत किंबा ये जो आध्यात्मिक मूल जंती कहते जे भौतिक दैविक एवं आध्यात्मिक ये जो स्तर देखिरी गति कले जाकरी जो स्पिरिचुअल आसे ताको कौन से पर्पसफुली ताको करा जाय पारे नै एटा दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग थैंक यू Thank you, sir. So, Paras, we have already received one question. Your talk was so clear that it has cleared all the doubts of the listeners. So, we'll proceed to the next agenda, next item in the agenda. May I request now the president of the Motivational Talk Series, Honorable Vice Chancellor of Kalahandi University, to give his presidential remarks. Over to you, sir.
चमत्कार उपस्थापना मन खुशी हो थैंक गला यू थैंक आउ यू क्षीर बा दही ए सब नुहे पूरा लहुणी खाइला भलिया लागे तबे कथा होची मु ए भितरु आनिथिबा किछि कथा को जोग करूची आउ किछि जेहेतु आम भिତରେ दुई जनक भिତରେ गोटे आत्मिक संपर्क अछि बहु वर्षर गत शताब्दीर बोली कहि हबो परजा संप्रदाय रे गोटे प्रथा अछि जे जेतेबेले तांको संप्रदायर लोकटीए मरी जाए से माने गोटे निर्दिष्ट गीत गाती से गीतटी मोर गोटे आंतर्जातिक मंचरे मंचस्थ होइतिबा हु हा बोली नाटक अछि सेथिरे भी स्थान पाइछि से गीतटा या रे रे नांगर रोले 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 रे 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 नांगर रो मधु रे ऑडियो डिस्टर्ब हो जाଉଛି टिके अफ कर दे ବରଣ ସମୟରେ ଯେମିତି ହସାର ସମୟରେ ସାର୍ ଅଡିଓ ଆସୁନି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଆସୁନି ଭଏସ ଆସୁନି ସାର୍ ଅଡିଓ ଆସୁନି Sir, you are not audible, sir. This is not sir, you are audible not audible. It's breaking. Your voice is breaking. is not audible ଆସିଲା ଆସିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ଆସିଲା sir. Yes, sir. Now it is clear. ଏବେ ଆସିଲା କौन सर ହଁ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଏମିତିକି ନେପାଳରେ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମରିବା ସମୟର ସାର୍ 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 ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ପରଜା ଗୀତଟା ହଁ ଗାଉଥିଲେ ସେଠୁ କନେକ୍ସନଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେଠୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସ୍ୱର ଦେଇକିରି ହଁ ସେ ପର୍ଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୀତ ଯୋଉଠି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଗୋଟେ ଅତି ଛୋଟିଆ ଜାଗା ସେଇଠି ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିଥିଲି ସେଟା ହେଲା ସେଟାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଶୁଣିନି ଯାହା କହିଲି ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଛରେ ବାଗମତୀ ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି ସେଠି ସମସ୍ତ ଶବ ଦାହ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ କେମିତି ସମାପନ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଏମାନେ ଏମିତି ଗାଆନ୍ତି ରେ ରେ ନାଙ୍ଗର ରୋଲେ 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 ରେ 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 ନାଙ୍ଗର ରୋଲେ मकुन धोती हूँ मकुन कुर्ता हूँ मकुन धोती हूँ मकुन कुर्ता हूँ रे रे देश पसेसी डालताना रे रे नांगर रोले କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ ମତେ ନୂଆ ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ କୁର୍ତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ମୁଁ ଦୂର ଦେଶ ଯାଉଛି ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ ଏଇଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୀତ ଶୁଣା ହେଇଛି ସବୁଠୁ ମଧୁର ଲାଗୁଥିବା ଆଜି ବି ଗୀତଟା ହେଉଛି ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ
ସେଇ କିଆରୀରେ ସୋ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଗୀତ। ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପର ଧାଡ଼ି କୋଉ ମା କେମିତି ଗାଇଛି ତାର ଠିକଣା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଲେଖିକିରି ରଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଦ ଛୁଆର ଆସିଯିବ ବୋଲି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ଏ ଗୀତ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। କବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଅନେକ କଥା ତ କହିପାରିବିନି, କିଛି କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ସମୟର ବାଧା ନଥିଲେ ସେ ଆହୁରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେଠି ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ। ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର କବିତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାଳଜୟୀ କବିତା ହେଉଛି କବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କବି କିଏ? କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ବର୍ଷା ଝରୁଛି, ଫୁଲର ଛାତିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ବର୍ଷା ଝରୁଛି, ଫୁଲର ଛାତିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ନିଆଁ ଜଳେ ସିନା ଉଠେ ନା ଧୂଆଁ, ନିଆଁ ଜଳେ ସିନା ଉଠେ ନା ଧୂଆଁ, ପାଉଁଶ ତଳେ ବି ଲିଭେନି ନିଆଁ, ପାଉଁଶ ହେଲେ ବି ଲିଭେନି ନିଆଁ। ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଜଳିଛି ଯିଏ, ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଜଳିଛି ଯିଏ, କବି ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତ କହେ, କବି ବୋଲି ତାକୁ ଜଗତ କହେ। ଏମିତି ଏ କବିତା କବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ମୂର୍ଖକୁ ଯେତେବେଳେ କବି ସ୍ତୁତି କରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣର କଥା କୁହାହେଇଛି, ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଅନାମ କବି କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ସେ କବିତା ଗାନ କରିଥିଲେ 1995 ମସିହାରେ। ସେ କବିତା ତ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମାନ ଶୁଣେଇବେ। ଆଉ ଏ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପରେ ଛାଡ଼ିବି ସେ କବିତାକୁ, ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତାଙ୍କର କବିତା ହେଲା, ଦୁଃଖ ଦର କେତେ କହ ସାହୁକାର, ସୁଖ ଦର କେତେ କହ, ଦୁଃଖ ଦର କେତେ କହ ସାହୁକାର, ସୁଖ ଦର କେତେ କହ, ଜୀବନ ମରଣ ଦର ତକ ଶିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ଦର ତକ ଶିଲ, ପରମର ଦର କହ ସାହୁକାର, ସର୍ଜନାର ଦର କହ, ସର୍ଜନାର ଦର କହ ସାହୁକାର, ଦୁଃଖ ଦର କେତେ କହ। ତେଣୁ ସର୍ଜନାର ଦର କଷି ହବ ନାହିଁ, ଟୋପାଏ ଲୁହର ଦର କଷି ହବ ନାହିଁ, ଚେନାଏ ହସର ଦର କଷି ହବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ କବିତା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଛି ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ସେ ବହି ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର, ଅଗ୍ନିର ଡେଣା। ସେଥିରେ ବିଗତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିରାଶା ଘାରିଛି, ବିଷାଦ ଘାରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କାଲାମ ସାହେବ
किछि कविता पढ़िछन्ति से कविता भी से ऑटोबायोग्राफी रे अछि से कविता मानक ठुरु से शक्ति नहीं प्रेरणा नहीं चंती आउ केते बेले तांकर जो वीणा रुद्र वीणा को से बजई किरे तार तरंग रु कविता आघ्राण करिचंती शक्तिमंत होइचंती आउ हेई पारु नथिबा काम को से करी किरे देखैचंती साधारण पिलाटी जानिबा पई तांकर अनुभूति को रामेश्वरम रो मंदिर चारिपटरे बुलुची एठी बुलिकिरी से जीवन प्रारंभ करथिले सेठी तांकर जो समाधि पाखरे ठिया हेकरी अनुभव करिছে से जीवन भी गोटे कविता तेणु किछि कवितार धाड़ी को आपण माने आपणै पारिबे से कविता आपण को साथी दब सुखरे साथी दब दुखरे साथी दब निराशारे साथी दब विषादरे साथी दब निज भीतर दंभ को संभाली रखिबारे तेणु मु भाबुछि आजिर ए जो वक्तव्य आजिर कथा सब आपण मानक भितरे निश्चित भाव में किछि सुंदर विहन बुणुथिबो जहाँ बारंबार मु कहे जे भगवान जेते माटी गढ़ी सबुठ उर्वरा माटी हूँ मनीष मस्तिष्कर माटी सेठी जदि भल विहन बुणा हम ताले भल गछ उठिब भल फसल हम समस्त को धन्यवाद वर्तमान मैं अनुरोध करी खूब अल्प धन्यवाद अर्पण करी सारिबा काच Thank you, sir. It was not a presidential remarks only. Sir, it's over to now, Jaydev sir, to propose the vote of thanks. समय स्वल्प किंतु इच्छा होतिला सदे जेमती समयटा किछि समय रही जानता अटकी जानता आम पई कि सुंदर सावलील भंगिरे आमर स्पीकर श्रीयुक्त सत्य पट्टनायक सर आज हमको सुनेले एवं ता संगरे जो सुंदर भावरे सुंदर मॉड्युलेशन दे गीत को गाई आमर ये कलाहांडी विश्वविद्यालय भाइस चांसलर आम मन को सुनेले यह अत्यंत प्रेरणादायी ही रही कविता जोठी जीवन सेठी जीवन जोठी कविता सेठी जीवन जोठी दर्शन सेठी तेणु कवितारे दर्शन अच्छी कवितारे जीवन अच्छी एवं प्रकृति रे कविता अच्छी आम सत्य पट्टनायक सर जमी कहले जे प्रकृति रु ही कवितार सृष्टि प्रकृति ही सत्यम शिवम सुंदरम लीलाभूमि भगवान चराभूमि से विलियम वर्ड्सवर्थ कहते जे प्रकृति रे ही भगवान रहंती एवं कवि मान प्रेरणा नियंती से प्रकृति तेणु प्रकृति को बंचेबा कविता को बंचेबा जीवन को बंचेबा एवं एभली जो आयोजन हेछि प्रेरणादायी जो आसर हेछि एमिति आसर माध्यम रे आमे बंचिबा एवं कोरोना भली महामारी को हरेबा समय नाही आ अधिक कहबार मु धन्यवाद जनाऊँगी कलाहांडी विश्वविद्यालय भाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सार को तांकर बहुमूल्य समय दे आम मान को सबु बेले जो प्रेरणा जो गौछंती सेथि पई तांको निकट रे आमे चिरऋणी मु सर आपण को अशेष अशेष धन्यवाद ए कार्यक्रम सबु किछि आपण द्वारा ही परिचालित होउछि तेणु आपण को अशेष धन्यवाद मु धन्यवाद देवी जी कि आज स्वागत भाषण प्रदान कले श्रीयुक्त शांतनु कुमार परिड़ा महोदय को मु तो सेते बेले नथिली टिके अलग कार्यक्रम रे थिली किंतु मोर मन कहूची जे निश्चित भाव रे आपण बहुत सुंदर भाव रे स्वागत करथिबे मु धन्यवाद देवी
आमर आजिर मुख्य आलोचक श्रीजुक्त सत्य पट्टनायक सार को प्रथम दिन आम शुणी पारि नथिले तांकर स्वागत भाषण ये जो टेक्निकल फॉल्ट हेतु किंतु आज अति सुंदर भावरे आमे शुणिले कि सार गर्भक ये जो भाषण थिला मने होतला कि आ गोटे घंटा हेतिले भी आमको खराब लगी न था आमको बांधी कर रखी थिला एवं मु चाट बॉक्स रे देखुथिली सबु आमर श्रोता बंधु माने समस्त लिखुथिले जे कि सुंदर पूरा मर्मस्पर्शी ये जो अभिभाषण तेणु सत्य पट्टनायक सार वास्तव रे आपणकर अगाध ज्ञान एइथिरु आमे जानि पारू एवं आपण को सुनी आमे धन्य हेलु कवितार जो जयगान कले आपण ताहा निश्चित भाव रे धन्यवाद आमे आपण को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करूछु एवं मु मोर प्रिय सहकर्मी श्रीयुक्त संजीव साहू को अशेष धन्यवाद देवी तांकर अति सुंदर जो मॉडरेशन कले से अशेष अशेष धन्यवाद एठी उपस्थित थिबा स्पिरिचुअल कलाहांडी ग्रुप रो समस्त सदस्य वृंद को मु अशेष धन्यवाद ज्ञापन करी धन्यवाद देवी मोर अनुष्ठान रो सहकर्मी मानन को धन्यवाद देवी छात्र छात्री मानन को जो माने कि आज सुनिछंती ए सुंदर अभिभाषण को धन्यवाद देवी समस्त को एवं विशेष धन्यवाद आमर नृपराज साहू सार को जे कि मु जदी पठे पारुनी लिंक टा तांको साइड रो कहउछन तार टिके पठांतु लिंक एवं मु पठौची तेणु अशेष अशेष धन्यवाद सर आपनकर ये जो उत्साह आम मान को उत्साहित करूची सर एमिति ध्यान तेणु समस्त को परिशेष रे मु धन्यवाद ज्ञापन करूची एवं ये मोटिवेशनल लेक्चर सीरीज ऋणी रहिबो एवं पुनी आसंता शुक्रवार आउ गोटे अति सुंदर आलोचना पाई आपण माने पुनी आम सहित योगदान करिवे बोली मोर आशा एवं विश्वास आपण मान को समस्त को नमस्कार एवं धन्यवाद। With the permission from the chair, थर पई ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତୃତା ମେଳାରେ ଆଉ ସେ ତ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବକ୍ତୃତା କବିତାରେ ହିଁ ରହିବ କୁଇ ଭାଷାର କବିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ କହୁନାହୁଁ ସେ ଆଗାମୀ ଥର ଆସିବେ ବା ତା ପର ଥର ଆସିବେ ସେଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। धन्यवाद ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା ଅଧିକା ସମୟ ଆମେ ନେଲୁ ଆରମ୍ଭରେ 5 ମିନିଟ କିଛି ଗୋଳମାଳ ରହିଲା। So with the permission from the chair, the meeting is over now. Thank you for joining and we expect that you'll join the meeting. କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। The meeting is over now.